جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جام عدنان اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر، جہاں علی امین گنڈا پور اور علیمہ خانم صاحبہ شہریار افریدی اور تحریک انصاف کی باقی قیادت اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی ہے اور یہاں پر عمران خان صاحب کے کیسز کی سماعت ہونا تھی جو کہ بار بار ڈی لسٹ کی جا رہی ہے۔ اس وقت پارٹی رہنماؤں کی بہت بڑی تعداد اور کارکنان یہاں پر موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عقب میں کہ اس وقت تحریک انصاف کی قیادت اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی مذاکرات سے ممکن ہے یا احتجاج سے ممکن ہے؟ خان صاحب کی رہائی اللہ کے فضل سے ممکن ہے اور اللہ کی مدد ضرور آتی ہے جب آپ سچ پہ ہوتے ہیں۔ اب ابیل آئے کہ نہیں آئے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ میں بچایا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے بچایا۔ غزوہ بدر دیکھ لیں، افغانستان سے دنیا کی سب سے مائٹیسٹ فورس آئی، بھاگ گئی۔ ٹھیک ہے جی، جب آپ کا یقین اللہ سے ہوتا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ خان صاحب جو ہے ورلڈ کپ نہیں جیت سکتے، کینسر ہاسپٹل نہیں بنا سکتے، وزیر اعظم نہیں بن سکتے، جیل نہیں کاٹ سکتے۔ اللہ نے ہر جگہ عمران خان کی مدد کی ہے، اللہ ابھی بھی مدد کرے گا کیونکہ اللہ الحق ہے، اور جب اللہ سے آپ کا ہونے کا یقین ہو اللہ آپ کے بیڑے پار کرتا ہے۔ تھینک یو سر، ویلکم۔ بھائی ادھر نیچے آ جاؤ، ایک پولیٹیکل پارٹی دونوں چیزیں پیرالل بھی تو چل سکتی ہیں نا۔ ایک طرف آپ کی بات چیت بھی چل رہی ہوتی ہے، ایک طرف پروٹیسٹ بھی چاہیے، سب پیرالل چلتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ بس ایک ہی طرف ہے۔ اور مذاکرات میں اگر وہ سنجیدہ ہوتے تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب، میاں محمود رشید صاحب، عمر چیمہ صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، یہ کم از کم یہ لوگ تو باہر ہوتے نا۔ وہ تو صنم جاوید کو بھی دوبارہ پکڑ لیا، تو یہ سلسلے ٹھیک نہیں ہیں۔ مذاکرات میں سنجیدگی تو نظر نہیں آئی، اس لیے پھر کیا آپشن بچتی ہے ایک پارٹی کے پاس جب اس کے لیے آپ سارے راستے بند کر دیں گے تو وہ پرامن احتجاج کا آپشن ہے، اس کو ایکسرسائز کرے گی۔ شکریہ سر۔ ایک ہمارے سابق MNA میرے ساتھی رہے ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کو ایک سیاسی جماعت کا پرچم جلاتے ہوئے اگر نفرتیں اور عدم برداشت اس حد تک بڑھ جائے تو پھر اس ملک سے جمہوری کلچر، روایات اور معاشرتی اقدار ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ حکومت ہے اور ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، یہ حکومت غرق ہونے جا رہی ہے اور ہم نے ہر طریقہ استعمال کیا، ان کے ساتھ بات چیت کی۔ جو جیلی تھے نہ چاہتے ہوئے خان صاحب نے کہا، مگر یہ انتہائی بے شرم اور ڈھیٹ لوگ ہیں، ان سے کوئی توقع نہیں ہے۔ اس ملک کا غریب، ہاری، مزدور، کسان مر چکا ہے، قومی ادارے بیچ رہے ہیں، پانی ختم ہو چکا ہے، دریا ہمارے خشک ہو گئے، ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ہماری ایک جدوجہد اور یہ معمولی نہ سمجھیں، باہر ان کو ہر طریقہ آزمایا گیا۔ اب جو ہی خان صاحب کی کال آتی ہے انشاءاللہ حکمت عملی تیار ہے۔ قومی اسمبلی میں وہ عمران خان کی پارٹی ہے، ہم سارے ہم کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ہم کوئی آزاد اراکین نہیں ہے، ہم سارے تحریک انصاف کے نشان کے اوپر تحریک انصاف کی حمایتی یافتہ۔ اگر بلے کا نشان ہوتا تو ہم سارے بلے کے MNAs ہوتے، لیکن چونکہ بلہ ہم سے لے لیا گیا، ہمیں انڈیپینڈنٹ نشانات دیے گئے، لیکن ووٹ ہمیں عمران خان کا پڑا۔ عمران خان کے نام کے اوپر لوگوں نے ہمیں الیکٹ کیا اور ہم تحریک انصاف کے ہیں۔ تو یہ ساری یہ اسٹوری ہے مختصر کہ چیف جسٹس جو ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم عدلیہ کے وقار کو بحال کرانے کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں، کیونکہ ہماری جو سے نہیں ہوئی، سیکٹری صاحب کے ساتھ ہی بولا گیا ہے، ان کے ساتھ ہی بات یقین دہانی کرائیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے براہ راست آپ کو دکھا رہے ہیں کہ علیمہ خانم باہر آ چکی ہیں۔ اس وقت علیمہ خانم اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر نکل چکی ہیں۔
90 मिलियन पाउंड का केस है। ये इतना ज़्यादा जो है नाकाबिल पजीराई केस है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड में से कोई एक धेला जो है वो ना तो इमरान खान के किटी में आया, ना ही बुशरा बीबी के पास गया, बल्कि सीधा वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया और उधर से फिर सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ के अकाउंट में यानी सरकारी ख़जाने में भेज दिया अमाउंट। तो फिर इसलिए जब कोई भी खुर्द बुर्द का आंसर ना हो तो मुकदमा जो है नैब का या करप्शन का नहीं बनता। इसी तरह जो अलकादर ट्रस्ट का जो यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो सुहावा में 460 कनाल जो है वो रकबा मलिक रियाज ने ख़रीद के, चूँकि वो एक इस कामों में बहुत ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसने जो है वो यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन ख़रीदी, उस पर यूनिवर्सिटी बनी, उस पर यूनिवर्सिटी जो है वो आज भी चल रही है और वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर जो कि प्रेस्टीजियस पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है वो उसके साथ एफिलिएटेड है, मुंसलिक है, यानी उसकी डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी देगी, तो उससे जो है उनको तालीम बच्चों को मुफ्त मुयसर आ रही है। और इमरान खान साहब चूँकि ट्रस्टी के तौर पर या बुशरा बीबी ट्रस्टी हैं, उन्होंने एक धेले का उसमें से ना मफाद उठाया है, ना ही कोई अपना अजीज़ व अकारब या किसी पार्टी मैन को वहाँ मुलाजिम रखा है। तो इसलिए जो अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है वो मौजूद है ऑलरेडी, और इन्होंने उल्टा उसे जो है ज़ब्त करके उसका तबाही फेर दी है और बच्चे जो हैं वो कस्म पुरसी के आलम में हैं, उनकी फ़ीसें और उनके अखराजात से भी वो उसको यूनिवर्सिटी को महरूम किया गया है। तो इसलिए ये जिस दिन इंशाअल्लाह लगेगा केस, ये उसी तरह हवा में फेंक दिया जाएगा जिस तरह जो है आपने देखा कि साइफर केस को उठा के फेंका हाई कोर्ट ने, और जिस तरह से इद्दत केस को सेशन कोर्ट ने अपील में उठाकर फेंका, इसकी भी हैसियत वही है कि इंशाअल्लाह ये कागज़ के चंद रद्दी के पुर्जे हैं, सफ़े हैं, जिनको इंशाअल्लाह जो है अदालत आलिया, हमें उम्मीद है कोई भी अदालत इंसाफ करने लायक अदालत जब आज़ाद होगी, ये बड़ी क्लियर बात है कि अदालतें इस वक्त आज़ाद रही हैं। हम बार बार अपने जज साहिबान को ये पैगाम भिजवा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, कौम आपके साथ है। आपने खुद कहा कि आपको प्रेशर आता है, आपने एक लेटर लिखा जिसमें आपने कहा कि हमारे पर प्रेशर होता है, हम आपका साथ देंगे, कौम आपके साथ खड़ी है, आप फैसला हक पे फैसला करें। आपसे कौम को उम्मीद है, इस मनसब पे आपको अल्लाह ताला ने बिठाया इसीलिए कि आप इंसाफ करेंगे। तो हमारा जो 26वीं तरमीम है, 26वीं तरमीम, ये जो है डाका मारा गया दिल्ली के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर, और जिन पार्टियों ने वोट दिया है न वो जमहूरी है और न वो इस लायक हैं कि लोग उनकी शक्लें भी देखें इसके बाद। तो ये डाका मारा गया है अदला की आज़ादी के ऊपर, ये 26वीं तरमीम के, इसलिए हम मुखालिफ थे, हम हैं और हम रहेंगे, और ऐसी तरमीम को हम टोकरी में फेंकेंगे इंशाअल्लाह। अवाम ने पहले भी मैंडेट दिया इमरान खान को, इन्होंने चोरी किया, इन बेशर्मों ने चोरी किया, चोरी करवाया गया, इदारों ने मिलकर चोरी करवाया, अब ढीठ बन के बैठे हुए हैं, मजीद तरमीमें कर रहे हैं, मुल्क के कानून को इन्होंने लोंडी बनाया हुआ है। तो हम फिर अद्या से कहते हैं कि कौम आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, आप कोई प्रेशर ना लें, आप इंसाफ पे फैसले दें। इमरान खान साहब पे सारे झूठे मुकदमे हैं, ये जो केस अभी आपके सामने बयान किया गया है उसमें बेनिफिशरी ही नहीं है ना इमरान खान साहब न बुशरा बीबी, और केस नहीं लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें ईद से पहले 5 तारीख की इंशाल्लाह पेशी मिली है, और इसके ऊपर इंशाल्लाह जब बहस होगी, फैसला इंशाल्लाह आएगा, तो पूरी कौम को पता चलेगा कि किस तरह डगोसले मार के अपने आप को नंगा करके ये निज़ाम और जो निज़ाम चला रहे हैं वो किस तरीके से मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के मैंडेट से खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि हम ये करके ये सब कुछ करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो इंशाल्लाह हमारी तहरीक जारी है, हमारी तहरीक जारी रहेगी। इमरान खान के साथ हम थे, हम हैं और हम रहेंगे इंशाल्लाह। और वजह क्या है उसकी पूरी कौम सुन ले, वजह ये है कि इमरान खान हमारी कौम की और हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है।
अभी 5 को लिस्ट के ऊपर उन्होंने डाल दी है कि कंप्यूटर पे आ चुकी है, वो लग चुकी है और अब मिल चुकी है। वो ऐसे हम लोग टाइम लगा, ऐसे लगा है कि हमने इंश्योर किया है कि हम दिलवा के आए हैं। 5 ओवर नहीं सुनते, इसके बाद आप क्या लाए देखिए कि वो इंसाफ हो। हमें ये उम्मीद है, खान साहब ने 29 साल इंसाफ के लिए कोशिश की है, आज वो खुद जेल में इंसाफ मांग रहे। नवाज शरीफ के पहले केस में 70 दिन के बाद उनको बेल मिली, दूसरे केस में सजा हो गई है, 10 साल की सजा हुई थी, सिर्फ 91 दिन के बाद उनको बेल मिली है। खान साहब के 600 से उसका अलकादिर की जो आज सजा आप सुन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सीरत नबी पढ़ाया जा रहा है। आप किस किस्म के लोग हैं? यजीदियत ना हम कहें तो और क्या कहें, फिरौनियत ना कहें तो क्या कहें। आप इस वक्त बात करनी है, हम औरतें बैठ जाती हैं आपके साथ, लेकिन सामने आके बात करें, पीछे से ये चीज़ें ना करें। आप जजेस को ना धमकाएं, आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ना धमकाएं। असर ख़त्म हो गया है, हम डर नहीं रहे कोई भी। हमें धमकियाँ आती हैं कि आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, इमरान खान को अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा। हम नहीं डर रहे, हम अल्लाह से डर रहे हैं। आप बताएं, आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ बात करें। एक दफ़ा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं उसके। वो तो कह रहे रूल ऑफ लॉ करो, वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, वो जमहूरियत के लिए खड़ा है। आप बताएं वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठें, सामने आके बैठें, हम मेज़ के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं, हम सामने बैठेंगे। हम पीछे छुप छुप के बातें करने नहीं लगे। लेकिन आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें, आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं, जो ईमानदारी से जो चीज़ होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन आप सामने आके बात करें, हम पीठ के पीछे नहीं करेंगे। इंशाल्लाह 5 तारीख को इन लोगों की मेहनत है। चीफ मिनिस्टर साहब अंदर गए, हमारे यहाँ खोसा साहब थे, अली ज़फ़र साहब थे, गौर साहब थे, लेकिन गौर साहब ने तो कल कह दिया था कि आज़ाद होने लगे 5 तारीख को। आप गौर साहब से ज़रा अपने सवाल पूछें, ये क्यों कह रहे हैं कि रहा होंगे, इनको कुछ पता नहीं। पहले उन्होंने लोग मेरे से पूछने के गौर साहब ने कहा, ज़रा गौर साहब से पूछें, अगर इनको कोई खुशखबरी है तो हमें भी बता दें।